हमको क्या पता, डायरेक्टर तुम हो भाई। कहीं तो चाहिए ये कुछ इलायची वगैरह। अच्छा, आपको शुगर चाहिए? নদী যদি হইবে ভরা অনায় কানায়, হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ তাকে কি মানা, তুমি এসে ছুড়ে নদী নদী যদি হয় রে ভরা কানায় কানায়, হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ তাকে কি মানায়, তুমি এসেছিলে পরশু কাল কেন আসনি, কাল ভালোবাসনি কাল কেন আসনি। আকাশে আকাশে ছিল না বনহাস চাঁদের পালকি, তুমি হেসে হেসে সন্ধ্যায় আসনি কালকি। আকাশে ছিল না বনহাস চাঁদের পালকি, তুমি হেসে হেসে সন্ধ্যায় আসনি কালকি। তুমি কি আমার বন্ধু কাল মনে রাখনি, কাল কেন আসনি, কাল ভালোবাসনি কাল মনে রাখো।
She is Kanika Mandal, Masters from MS University, PhD in Museology Department in MS University. Thank you so much, Uday. I would like to share my own journey, my own experience with living with an artist, being married to him for 16 years, and my own journey as a museologist, and my work, the way I have, my journey has been in the field. So, I think it's important to share a few anecdotes from my journey. I remember one time wherein in 2016-17 I had visited Britain on this Charles Wallace and Nehru Fellowship, and that was when my first experience of of the Western, and I was placed in Derby for 2 months, and that's when I had a very one-to-one for the first hand interaction experience with art in a great way, and how museums deal and reach out to public. So their outlook of celebrating artists is, the way they celebrate their art is something even we do, but then that is at a greater momentum there. So I feel and there was another instance wherein I was working with Akbar Padamsee. I was documenting his artworks. They did museum person. How they celebrate artists or art? The whole the whole vast programs they do, the kind of activities they do, the way they involve their public into the museum, and the museum doors are completely open to the public. And the way they actually, all the activities are open to the public. They can come, they can curate the exhibition, they can participate to a great extent. I mean, they are made to feel like home in museums. So that was one thing which really brings to mind that we also need to imbibe that thing in our Indian museums. Museums are doing great in India as well. We have a whole treasure of knowledge and resources. But the reaching out part is something which I felt in my journey during my research also, that we need to explore a little more. And coming down to art, I remember my experience of working with Akbar Padamsee in Mumbai when I was documenting his artworks. So I saw that the way he, all his journey was, right in front of me when I was documenting his artworks, his entire life's works, and I could relate my experience of living with an artist 24/7, 16 years, and that's when I felt that how important it is and how valuable my own life has become, because I'm married to you, and one-to-one I've seen how art comes out of, how art is born from an artist. So that was one thing great which I felt that I felt I was lucky. And being a visual artist, like I did my bachelor's in painting from Delhi, and being a visual artist myself, I think my own experience became more meaningful living with you. And how art is born, how a painting is born from an artist, and the way the environment actually leads to the creation of an artwork. That was something that thought and experience was more nurtured. So, but I remember, Uday, that even while I was there with Akbar Padamsee sir, and I had to, I used to interact with him. His wife shared that Akbar sir's works are never complete. I remember that when I was working with Akbar Padamsee sir and documenting his collection in Mumbai, that's when was my first experience. Not first, I would say the second experience. I stepped out and I was in an artist's world living with them. And I remember that Akbar sir's work were always, always in the studio. There were 5 to 7 artworks always ready, as if he was working on all of them. And I happened to share with Bhanu, his wife, Bhanu ma'am, that this is something I can relate. That I in fact questioned her that how come so many works is sir working so much? I mean, on all the artworks in one go.
So that's when Bhanu said that कि अकबर सर के काम कभी ख़त्म नहीं होते. And I could relate it with you that over the years I've seen that even if you say that the artwork is complete, it's never complete. Suddenly in the morning, if I'll see that that it's altogether very different. So there were two things which I particularly wanted to ask you, that when is it that you decide that the artwork is complete or it's incomplete? Because I have seen an artwork evolving over the years. Even if your painting is done, you would say it's done, but the next morning I would see it would be all very different. So what is your take on that, Uday? हाँ, मेरा पेंटिंग भी ऑनगोइंग प्रोसेस में पहले भी बोला, वो कंप्लीट नहीं होता है और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ. एक्चुअली हर रोज़ मैं माने इतना पेंटिंग में इतना लेयर क्यों डालता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं शुरू करता हूँ पेंटिंग करना, दूसरा दिन में वहाँ पे टाइम भी बदल जाता है. मॉर्निंग को शुरू करता हूँ तो शाम हो जाता है. तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ, तो वहाँ पे जो जो चेंजेस आ रहा है उसके वजह से पेंटिंग भी चेंज होता है और हर रोज़ कुछ नया आइडिया आता है. वो नया आइडिया भी उसके अंदर मैं पुट करता हूँ हमेशा. तो उसके वजह से शायद वो एक साल के बाद भी आ सकता है कुछ आइडिया, तो वो उसमें फिर एक साल के बाद उसमें डाल देता हूँ अगर पेंटिंग मेरे पास है तो ऐसा प्रोसेस चलते रहता है. That is one. Another thing which I noticed in you and your artwork, your art style, not just the fact it's unpredictable, but you always follow your wishes. I mean, you never compromise what you have to do to anybody's demand, be it the galleries, be it the art collector, be it the need of the art. I mean, need of the art considering the current times also, but you have never compromised your art for anything in the world. So why is it so? I mean, why do you, I mean, and whenever I've had an opportunity to ask, you always say art is the only thing I can do, and I was always ready for all the struggles. And I tried my level best to support and whatever way I could do, but I know, I mean, you're an artist, you're committed completely, but why don't you compromise on your art for anybody's or any moment's sake? वो मैडम का मुझे याद आ रहा है अभी. It's been many years. हाँ. She had asked, I remember, I mean, yeah, she had asked, she wanted a painting Pink, particularly pink color. in pink. हाँ. And you had completed the work, and in the morning when I saw it was repainted. Acha. Yeah. But वो मुझे याद है, she wanted not even pink, she wanted peach in color. And as per her choice, you had painted, and even in the evening, because the deadline was approaching, and I saw that the work was complete, I was like happy and satisfied, it's done. Big painting था. Yes, it was a huge canvas. And then morning when I woke up, I saw the whole painting, the whole peach was completely gone. Nobody could actually make out. And I mean, why is it so? How is it so? I mean, you never prioritize or compromise anything or anybody's choice or anything for art. उस टाइम में तो थोड़ा गुस्सा भी हो गया था. गुस्सा हुई थी कि और इतना जो कमिट किया था. She required, she asked, and you actually agreed to her that you would provide. लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं जब काम करता हूँ ना, तब काम के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है 3-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उस टाइम में ना सब कुछ आउट हो जाता है. ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये माया का जगत से एक शायद वही गॉड है. मैं रियलाइज़ किया गॉड क्या है. वो जो आनंद है ना, सब कुछ भूल जाने का जो आनंद, शायद वही गॉड है. वहाँ पे बिल्कुल मैं अलग एक इंसान बन जाता हूँ. तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्या कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं चलता है. एक कैनवास के सामने जब खड़ा होता हूँ, तब कैनवास ही मुझे बोलता है कि तुम अभी करो, अभी इतना करो. तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. उस टाइम में मुझे पता है पूरा कंप्लीट हो गया पेंटिंग. मैडम को भेज दिया, व्हाट्सअप किया, तो उनका भी पसंद आया कि वेरी गुड जॉब. उसके बाद जब मैं घर पे आया और जब काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ कुछ रात को, उस टाइम में लग रहा है कि मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ वहाँ पे पेंटिंग. उसके बाद जो पिंक कलर है ना, उसके बाद उसके ऊपर कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बोला था एक ऑपोजिट कलर का लेयर
वो उसमें आता है तभी कंप्लीट लगता है। नीचे से वो कलर दिखना चाहिए, कुछ अपोजिट कलर नीचे से दिखना चाहिए, और इसमें ना बहुत फ्लैट लग रहा था, तो उसके वजह से मैं चेंज किया तुरंत रात को। और तुम्हारी कमिटमेंट और डेडिकेशन तो याद है, आई मीन आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ अ मैरिज यू हैड अ शो सीमा में, व्हेन यू हैड अ 3-man शो एंड यू हैड कमिटेड टू सेंड द वर्क्स एंड यू वर एक्चुअली रनिंग लेट. A similar experience happened. You remember that painting? Huge 5x7. तो उसमें था, and next day morning same. It was painted black. I remember very clearly. And from black you actually tried to repaint. And though the deadline you had already missed, but still you did not compromise on the deadline. So the show got delayed. एक्चुअली ना पेंटिंग जो है ना वो एक माँ जैसा, एक शिशु, एक बच्चा को जैसा मार देता है, जैसा अंदर जैसा को पालते हैं, तो वैसे ही आर्ट वर्क मेरे लिए क्यों, सब आर्टिस्ट के लिए वैसे ही है कि वो उसका अंदर उसको पालते हैं अंदर। तो फिर वो जब ऐसा निकलते हैं तब उस टाइम में वो काला होगा कि गोरा होगा कि कैसा होगा वो कुछ उनको नहीं मालूम है। वो उनके हिसाब से वो होगा जैसा है, वो अपना बच्चा है। सच में मैं रोता भी हूँ कभी, कभी वो कि struggle देखा है, तुम्हारा रोता pain हूँ देखा ऐसा है। कि ये सब चीज़ होना चाहिए, और मैं एंजॉय करता हूँ ऐसा कि मैं उसके साथ इतना इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ मिलता है, तो ये अच्छा दिखा है। मेरा पर्टिकुलरली जब आया था अपॉर्चुनिटी, मुझे याद है, आई मीन वी वर जस्ट मैरिड फॉर 1 ईयर, और इसको बुलाया था, इनवाइट किया था एक फैकल्टी मेंबर, आई मीन एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करने के लिए, सीधा ज्वाइन, आई मीन। तो मैंने इसको बोला, आई मीन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एकेडमिक्स में आ जाओगे तो क्यों नहीं ज्वाइन करना। सो आई रिमेंबर वी वर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द टेरेस एंड ही सेड कि कनिका आई जस्ट हैव टू वर्क, मुझे सिर्फ आर्ट ही करना है। दैट वाज वन डे, it just kind of I tried to learn it कि I mean this person is only committed to art and nothing else, so whatever I have to do, the way I can contribute to the family I'll do. and उसमें इनका बहुत सपोर्ट भी रहा है कि इन्होंने मुझे जो भी कुछ करना था उसमें पूरा सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट बहुत रहा है, एंड उससे मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इनरिच रही जर्नी, अच्छी रही हमारी साथ में। हाँ, चैलेंजेस तो आए हैं, बट आई थिंक वो डील करना है लाइफ सिखा देती है ओवर द इयर्स, और वो मैंने आई थिंक वो मैच्योरिटी कहते हैं उसको, इतने सालों में इवन आई हैव लर्न तो हाउ टू लिव इन एन आर्टिस्ट। देखो छोटा मोटा नोकझोंक जो रहता है ना, वो एक मैं छोटा स्टोरी बोल सकता हूँ। एक बार नारायण भगवान, उन्होंने किसी को चक्र से कुछ फाइट किया या कुछ हुआ ऐसा, तो वो चक्र आके ना उनका उंगली में फिर आया वापस। आने के बाद तो एक लेडी थी, उन्होंने उनका कपड़े का पल्लू फाड़ के ना उनका हाथ में बांध दिया था। बांधने के बाद बोला कि आपको क्या चाहिए। तो वो लेडी बोली कि तुमने मुझे माँ आपको क्या चाहिए ऐसा बोला ना, तो तुम नेक्स्ट जन्म में तुम मेरा बच्चा बनो। तो बोलते तथास्तु, नारायण भगवान ने बोला। तो नेक्स्ट जन्म में ये श्री कृष्ण भगवान बना, और श्री कृष्ण भगवान जब छोटा था तब जसोदा बना। तो कृष्ण भगवान इतना साता रहे कि माने कोई पूरे गांव के लोग पूरा गांव का लोग कंप्लेन वो रोती थी, और वो गुस्से में उनको बांध देती थी। बांध देती थी गुस्से में, फिर उनका मिट्टी खा रहा है, ऐसा मिट्टी खा रहा है, ऐसा परेशान हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि वो तो कृष्ण नारायण भगवान है, तो वो इजीली उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकता था, उसका माँ को सुख दे सकता था। लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि माँ का सुख जो है ना, वो खाली सुखी होने से मज़ा नहीं आएगा, उसमें जो सुख दुख पेन्स ये सब एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं फैमिली लाइफ में सुख दुख ये जो है उसके साथ ही जीना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, क्योंकि खाली सुखी हो जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है जो अलग अलग जो लाइफ है, अलग अलग जो लाइफ का मीनिंग है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये सब होना चाहिए, और इसमें से ही लोग सीखते हैं और जानते हैं और मज़ा लेते हैं। सुखी होना ही, एक मूवी देखेंगे तो उसमें विलेन भी आता है, बिछड़ भी जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं पे मिलते हैं, तभी मज़ा आता है। तो ऐसा लाइफ में ऐसा मज़ा होना चाहिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, खाली सुखी ऐसा नहीं होता है कभी।
कभी ज़्यादा पैसा आएगा, कभी कम पैसा आएगा, कभी पेंटिंग सेल हुआ 2 साल 3 साल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। नहीं, फाइनेंशियल गेन्स और मॉनेटरी तो रीजंस कभी ऐसे रहे नहीं। आई थिंक हमने जस्ट आर्ट को और काम को लेके हमेशा प्रायोरिटाइज किया, और आई थिंक उसका रिजल्ट है कि इसके जब मैं वर्क्स देखती हूँ इतने सालों में जो ग्रो किया, इवॉल्व किया, वो जर्नी अच्छी रही। और मैंने खुद जो मैं भी सीख पाई इससे और मेरे अपने एनवायरनमेंट से, वो बहुत बेनिफिशियल रहा हमारी जर्नी में हम दोनों की। तो एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ म्यूजियोलॉजिस्ट, एंड जैसे पीएचडी के टाइम में मैं थोड़ा सा आर्ट को कम करके पूरा काम, तो अगर एक जन थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है या बिजी है, तो द अदर पर्सन टेक्स अ बैक सीट फॉर सम टाइम। तो वो थोड़ा स्लो डाउन होना एक अंडरस्टैंडिंग से, उसके बाद वापस टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स। सो दैट वाज ग्रेट, अच्छा रहा। और एक चीज़ और जो मुझे आर्टिस्ट से के साथ रहने से जो मैंने सीखी और देखी, कि म्यूज़ियम्स में जब मैं इतना काम देखती हूँ, अपने इंडियन म्यूज़ियम्स के साथ काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कहीं पे अंदर मन में एक माय हार्ट इज़ फिल्ड विद प्राइड कि आई हैव सीन हाउ एन आर्ट वर्क इज़ बॉर्न। सो it's not just a piece of work displayed on the wall. I can relate what the artist must have felt or experienced, and then created that piece. So वो अपने Indian हो या Western हो, but art is art. It has no boundaries. It transcends all barriers. So that's how our journey has been. एक फ्रेंडली रिलेशन अगर रखेगा लोग, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि दूसरे कभी कोई किसी को दबाएगा, तुम तुम ऐसा करो, ये तुम्हारा जॉब है, ये सब अगर भूल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। I have seen के in all my artist circle wherein couples are artists. So ये husbands being male, they are practicing artists, लेकिन wives को भी पूरा support करते हैं उनके career pursuits में। तो और इतना के वो जो normal traditional अपने है stereotypical beliefs के husbands are only wives should cook, be in the kitchen all the time, और घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, despite the fact they have to go and earn also. तो ये सभी फाइन आर्टिस्ट हस्बैंड्स को मैंने देखा कंटेम्प्रेरी हमारे ग्रुप के, कि हर कोई इससे बहुत आगे है। और आगे होना भी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरत भी है। क्योंकि आर्टिस्ट का क्या है, कोई अनएक्सपेक्टेड वो है, कभी हो रहा है, कभी कोई शो बहुत सक्सेस गया, एक घर भी बना सकते हैं एक शो में, और कोई शो ऐसा हो रहा है कि अरे वो पहले वाला अच्छा था, ये शो में वो चीज़ नहीं दिख रहा है, बस कोई सेलिंग नहीं, तो फिर उस साल जॉब करे और उनका अलग सा लाइफ लीड करे उनका वाइफ, तो उनके सहारे में थोड़ा 1-2 साल फिर चल सकता है। ये करना ही चाहिए, तभी जाके दोनों में कुछ चीज़ें बनेगा, एक दूसरे को हेल्प करना, ये सब रहना चाहिए, तभी जाके कोई स्टैंड कर सकता है। हमारे एल्डरलीज बोलते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ एक ही फील्ड से हो तो वो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो बहुत एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सही है, एंड विच हैज़ बीन ट्रू। जैसे डॉक्टर मैरिड टू अ डॉक्टर they would be a better couple. Same way I think an artist married to an artist would be a better couple. मैं ऐसा जानता हूँ कि हर 2 व्यक्ति हमेशा अलग ही है, वो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो कला के जगत में नहीं है, अगर जनरल बैंक में जॉब करते हैं, तो उसमें क्या हो गया? I feel एक way of लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका जॉब में, उनका जॉब को मैं रिस्पेक्ट करूँगा, और मेरा भी जो जॉब है उसमें भी वो रिस्पेक्ट करे, तो बस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको लगेगा अरे ये क्या रात दिन बैठा रहता है, शो में तो गया, सारे पेंटिंग फिर वापस भी आ गया, ये सब रहेगा, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन वो अगर अंडरस्टैंड करेगा कि अरे कोई बात नहीं, इसका ऐसे ही है जॉब, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी बहुत बड़ा बनेगा, तो ये सब रहेगा। तो ऐसा डेली रूटीन में जो हर महीना कुछ ना कुछ होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करेगी, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होता है, क्लैश होता है। खाली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे, ऐसा लगता है मुझे। But to this I would like to add that every understanding is actually born when you wear the other person's shoes at any point. तो
मैंने वो अपना जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और खुद को उनकी पोजीशन में रख के नहीं देखेंगे, तब तक वो अंडरस्टैंडिंग वो आएगी नहीं, वो डेवलप ही नहीं होगी। तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी जो फाइन आर्ट्स के साथ एक इनिशियल मेरा रहा, बैचलर स्टडीज़ रहा, जिसमें वो तो आर्ट्स help होता ही ऑलरेडी है। मैं एक्वेंटेड थी, तो वो उसकी वजह से व्हेन आई मैरिड यू, तुम तो तब बहुत सीनियर थे और काफ़ी आगे थे, आई सोलो शो हाँ, हुआ मैं तो था अभी भी सीनियर नहीं हूँ। मेरे से तो तो so उसकी वजह से मैं थोड़ा, मुझे लगा कि मैं समझ पाई आर्ट को, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे साथ रह के ग्रो की आर्ट के बारे में और लाइफ के बारे में भी। जनरल जो पीपल है जो आर्ट का फील्ड में नहीं है, वहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम होता है, वो लोग रेगुलर जो लाइफ है वो लीड करते हैं। जैसे मैं सोता रात को हूँ, वही कहने हाँ, वाली थी तो मैं। कोई बोलेगा अरे हाँ। रात को 10 बजे आपको सोना है, वो आर्टिस्ट नहीं। कोई ए आर रहमान भी मैं सुना पूरी रात भर जागते हैं, तो मैं भी पूरी रात भर जागता हूँ। कोई जनरल शायद होगा तो फिर बोलेगा कि नहीं टाइमली सोना और ये सब वो नहीं ऐसे- कर पाता हूँ, ऐसे बहुत- दोपहर को उठ रहा हूँ, ये सब कौन अलाउ करेगा। थैंक यू, तूने पूरा अलाउ किया ये सब। और मुझे तो नॉर्मल एक लाइफ में आना ही और नॉर्मल रूटीन फॉलो करना ज़रूरी ही हो गया था। दैट वाज बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय पीएचडी आई हैड टू गो टू कॉलेज, और आई was doing my MA when I got married, so I had my college at that time also, so I could not afford to wake up late or live a lifestyle that he is exclusively enjoying. And over the years also I could not afford to, because after PhD I had to go, then my daughter was born, her school and everything. But then I always understood that he has to be given some kind of space, and everybody needs to have that personal space in life to live their life the way they want. And I have tried my level best to not get annoyed with that over the years, पर एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज उससे ही लाइफ चलती है, तो और अच्छे से लीड कर पाएंगे। जितने क्लैशेस होंगे अपनी ही, यू लूज योर ओन सैनिटी, और जहाँ सैनिटी लूज करेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। सो दैट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और जहाँ पे बिकॉज उदय इतना सोशल नहीं है, हमेशा आर्ट और आर्ट में ही लाइक ही इज़ कम्प्लीटली डूबा हुआ रहता है उसमें। तो मैंने बहुत सारी सोशल कमिटमेंट्स होती है, कुछ भी वर्ल्डली कुछ भी अफेयर्स है, मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ही हैंडल किया। तो वो, बट आई हैव बीन वेरी ओके विद दैट, बिकॉज दिल्ली में अपब्रिंगिंग हुई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे हूँ, तो मुझे आई वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन हिम कि मुझे इनका सपोर्ट हर टाइम चाहिए ही, इनका साथ हमेशा चाहिए। इनिशियली था, एक्सपेक्ट किया, फिर वो नहीं मिला तो सोचा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसी मेरी लाइफ रही है वैसे ही खुद ही सब करना है। So I've done that. इसको तो फ्रीडम बोलता है। You term it as freedom. तो मेरी फैमिली में भी कई बार इनिशियली एक क्वेश्चन होता था कि मैं इतने ट्रिप्स, कोई भी फैमिली गैदरिंग होगी मैं पहुंचूंगी, उदय नहीं आएंगे, उदय क्यों नहीं आए, जैसे नॉर्थ इंडियन होता है कल्चर। फिर धीरे धीरे उनको भी मैंने समझाया कि आर्टिस्ट है, ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ अलग है, उसको उसकी स्पेस दी जाए तो अच्छा है। और ओवर द इयर्स उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसके लिए आर्ट ही सब कुछ है, आर्ट सबसे ऊपर है, हमारे से भी ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। बाकी लगता है कि सब कोई मीनिंगलेस लगता है गैदरिंग। कभी कभार बहुत एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा सब जगह कमिटमेंट के हिसाब से जाना है, ये कितनी बार टाइम वो नहीं इनविटेशंस कर हुए पाता। उदय एंड यू हैव ऑलवेज मैं टर्न्ड इट एंजॉय डाउन, करता हूँ, बट हाँ, लेकिन कमिटमेंट जहाँ पे आ जाता है, इतना टाइम में आओ, इतना टाइम, वो मुझे उस टाइम में कभी काम कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ या अकेला रहना चाहता हूँ, तो उसमें मैं फिर नहीं जा पाता हूँ। लेकिन एंजॉय करता हूँ, लोग जो साथ में अच्छा लगता है, फ्रेंड्स। But I think from my own inner self, I have completely deleted that complaint kind of a thing from him, because I know he'll not be available socially with me at every occasion, and we are living in a social world. I have to fulfill all इवन the वेज नॉन वेज requirements. का भी तूने वो कर दिया। I'm still a hardcore vegetarian, and you're always a hardcore non-vegetarian. पर I लेकिन felt- allow I कैसे always किया? felt, बहुत लोगों का देखा मैं, वो लोग जो वेजिटेरियन है तो वो लोग नॉन वेजिटेरियन को घर पे बनाना और ये सब अलाउ नहीं करते हैं, और मैं तो हर रोज ही ऑलमोस्ट नॉन वेज बनाता हूँ।
मुझे I feel that Disturb नहीं होता if ऐसा your smell, soul if your soul is not happy, I mean even if you pretend to be happy on the outside, you're not doing any good. So I learned that you will be happy only when you have your fish curry and rice and chicken. I could not adopt that lifestyle. ना वो जरूरी भी नहीं है, अडॉप्ट क्यों So करें, अपना जैसा जो मुझे वो पसंद हो अच्छा खाओ। लगा that you मुझे never अच्छा ये लगा forced me. तुमने माना नहीं किया और मुझे मेरा लाइफ हाँ, मुझे जीने यही दिया, लगा कि तुम्हारा सोल ही खुश नहीं रहेगा तो तुम क्या खुश रहोगे, तो इसलिए तुम्हारा लाइफस्टाइल जैसे जी रहे हो जियो, यू शुड थैंक बी यू फॉर हैप्पी. दैट। कुछ ठिकाना नहीं है उसका, मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरा रूटीन है, कोई रूटीन के अनुसार मैं काम नहीं करता हूँ। मैं तो उठ के ब्रश करके ऊपर चला जाता हूँ पेंटिंग करने के लिए, स्टूडियो मेरे ऊपर है, माँ बाकी घर का देख लेती है, 2 लेडी आती है वो लोग को देख लेती है, और फिर बीच में एक लेयर देके फिर कुछ बनाना है मुझे खाना, वो कर लेता हूँ। माही को थोड़ा कनिका ही पढ़ा लेती है, बाकी थोड़ा सा देखना है, एक लेयर हो रहा है तब तक सूख जाता है, सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है एक लेयर, तब तक मैं थोड़ा सा ये सब काम कर लेता हूँ, पेड़ पत्ते में पानी डाल देता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, और ये भी काम का ही एक पार्ट है, तो उसके साथ ही चलते रहता है ये सब। मैं एक्चुअली ना पेंटिंग के साथ ही जीता हूँ, तो कभी मार्केट जाना है तब भी बाइक लेके जा रहा हूँ और इधर पेंटिंग सूख रहा है, तो वहाँ कौन सा कलर देना है, उसमें वाइट कितना डालना है, वो सब दिमाग में रहता है। तो ऐसा भी कभी हुआ, मैं लोगों को ऐसा जाते जाते कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाइक बोलते कहाँ देख के चलते हो ऐसा, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा कुछ कहीं पे लॉस था, ऐसा कभी कभार होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग कभी बाहर है, एक बार तुम गार्डनिंग कर रहे थे, मैंने आगे कुछ पूछा तो तुम बोले 1 मिनट रुक, वहाँ पे ब्लैक आएगा कि ब्लू आएगा, मैं वो सोच रहा हूँ। सो दैट इज हिज इन्वॉल्वमेंट विद वर्क ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द नाइट। इवन दारवान कभी गाड़ी रोकता है कि अभी सिग्नेचर करके जाना है, तो एक बार मैं नहीं कर पाया कि अभी मुझे छोड़ दो, अभी जाना है कैनवस के सामने, उस मोमेंट में तुम्हें काम करने क्योंकि आना मैं ना ऐसा कहीं पे जा रहा था, जाते जाते मैं वापस आ गया कि अभी एग्जैक्ट मुझे पता चल गया क्या करना है, कैसा फ्लो, वो कोई फार्मूला नहीं है कि ये कलर ऐसे ही डालना है, ऐसा कुछ ऐसा कि अब भी मैं कर सकता हूँ, तो वो मोमेंट चाहिए, तो मैं फटाफट घर आया और काम शुरू कर दिया, और तब पता भी नहीं चल रहा है कितना बज गया, क्या हुआ। पेंटिंग के मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, पहले से मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ काम में, और सब हमेशा ना कुछ स्टोरी, मैं इतना इंटेलेक्ट इतना याद बहुत कुछ रख नहीं पाता था। जैसा पहले ना दिलीप मित्रो मेरा इंडियन आर्ट कॉलेज में आया, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन जैसा सलील साहनी, उसके बाद शांति निकेतन में ग्राफिक्स करने के लिए गया था उनका स्टूडियो में, तो हर साल ही जाता था इधर इंडियन आर्ट कॉलेज में, जब छुट्टी होता था तब शांति निकेतन में जाता था। तो पहले दिलीप दा का कुछ स्टोरी, एक आध स्टोरी, क्योंकि बहुत कुछ बातें होता था, वो सब मैं भूल गया, 1-2 स्टोरी ना मेरा लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, और आर्ट की तरफ घुसने के लिए बहुत ही मेरा काम का था, इंस्पिरेशन मिला। तो दिलीप दा का स्टोरी ऐसा था, बहुत सारा स्टोरी था, तो उसमें से एक बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ पे वो बच्चा पेंटिंग करता है, ड्राइंग पेंटिंग करता है, वॉल में कुछ कर देता है। तो उनका टीचर बुलाया कि अरे ये तो पढ़ाई का नामो निशान नहीं है इसका, ये खाली पेंटिंग करेगा, ऐसा आलतू फालतू काम है, ये तो कोई मतलब नहीं है, मैथ्स करो, साइंस करो, वो सब नहीं है, खाली पेंटिंग करता है, तो आप क्या करो, इसको लेके जाओ, ये तो काम का नहीं है। तो उसको घर में लेके आया, तो घर में लेके आके उसको बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद वो घर में ही ना कुछ चारकोल मिला, तो उससे ही पूरा वॉल में बनाना चालू कर दिया। तो उसका मम्मी पापा परेशान हो गया कि ये बच्चा तो चाहिए ही नहीं मुझे, ये तो नालायक है एकदम। तो फिर वो क्या किया, उन्होंने फ़ोन लगाया सर्ग में फ़ोन लगाया, बोलता है ये बच्चा को आप लेके जाओ, दूसरा थोड़ा चेंज करके दो। तो भगवान बोला ठीक है, एक बच्चा, अच्छा वाला बच्चा एक दे दो इनके बदले। तो एक अच्छा बच्चा को दे दिया। तो वो बच्चा आके ना एकदम बढ़िया, जो बोलता है वही सुनता है, माँ पापा उसको घर में रख के जाता है, स्कूल में जाता है, वो भी फास्ट आता है, जो बोलता है वो करता है। तो जो मैं अभी स्टोरी बोल रहा था ना कि लाइफ का जो मज़ा है ना, वो नहीं मिल रहा है उनसे, कि ये बच्चा जो बोले वही करे, कोई शरारती नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। प्रॉब्लम्स चाहिए, मैं पेंटिंग में भी ना प्रॉब्लम्स चाहिए मुझे,
ऐसा एकदम एक जैसा मैं मुझे आता है उसको करते जाओ वो नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स को मैं अलाउ करता हूँ, उसको रखना चाहता हूँ। ये मैं यहाँ अपना फैकल्टी से सीखा, इंदोदा से। तो मैं उनके बारे में थोड़ी देर बाद आता हूँ अभी। तो वो स्वर्ग में जो लड़का को स्वर्ग में भेज दिया ना, तो वो लड़का स्वर्ग में जाके क्या कर रहा है, कोई 4 लेडी है, वो लोग पानी लेने जा रहे हैं रिवर में। तो बोलते हैं हेलो थोड़ा सा सुनो, 2 बातें करते हैं। तो बोलते हैं वहाँ पे माने भगवान उनको क्या कि वो बच्चे को ऐसे एक जगह में रखा जहाँ पे सब लोग बिजी है, काम कर रहा है, कंटिन्यूस काम कर रहा है। तो कोई दूसरा कुछ ये जो हम बोलते हैं जो अकाज कुकाज जो काम कर कुछ नहीं, वो जैसा पढ़ना लिखना जॉब करना वो सब नहीं, तो वो करता है वो लड़का। वहाँ पे उनको बुलाता है, तो वो लोग कोई बोलते हैं नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप अभी जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, आप डिस्टर्ब नहीं करो, 2 मिनट के लिए भी टाइम नहीं है। तो वो लोग ऐसे डुबकी लगाते हैं पानी में, तो उनका जो कलसी है उसको बाहर छोड़ते हैं। तो उस कलसी में ना ये बच्चा क्या करता है, एक छोटा सा मिट्टी का ही जो टुकड़ा है वाइट कलर का जो भी, वो उससे एक डिज़ाइन बना देता है। तो वो लेडी वो उसको लेके पानी लेके फटाफट चले जाते हैं घर जाके जब ऐसा ही बेड के नीचे रखने के लिए उसको रखता है, फिर देखता है तब तक वो ब्राइट हो गया, मिट्टी थोड़ा सूख गया उसमें। तो उसको लेके बोलते हैं कि ये ना टेबल के ऊपर रखते हैं। फिर टेबल के ऊपर रखा, फिर ऐसा देखने लगा उनको, अरे वाह ये तो ब्यूटीफुल लग रहा है, क्यों लग रहा है क्या हो रहा है वो उनको मालूम नहीं। तो फिर दूसरा दिन में वो बच्चा जब पीछे जाता है ना, तो उसको बुलाता है, अरे हमारा भी इसमें कर दो। तो ऐसा फ्लावर वास बन गया, उसके ऊपर कुछ ऐसा पत्ता लेके फ्लावर लेके उसके ऊपर रख दिया। तो वो काम का नहीं रहा, वो जो घड़ा है वो काम का नहीं रहा, वो ब्यूटीफुल हो गया। तो फिर बोलते हैं मैं ना आपका फेस को भी ब्यूटीफुल कर सकता हूँ। तो करके वो उनका फेस को भी ब्यूटीफुल कर दिया, कुछ ऐसा डिज़ाइन बना दिया, कुछ यहाँ पे फ्लावर डाल दिया। उनके पास टाइम नहीं है ना, कुछ करते नहीं है। तो वो लड़का उनका बाल को ठीक कर दिया, उसमें थोड़ा फ्लावर डाल दिया। फिर वो लोग ना मिरर में या पानी में ऐसा देखने लगा खुद को, तो टाइम वेस्ट हो गया। फिर भगवान आया, अरे क्या ये बच्चा क्या कर दिया। तो ये है आर्ट का कितना महत्व। तो ये जैसा और भी मैं बोल सकता हूँ, सलीलदा, उसके बाद दिलीप दा ने मुझे या हमारा जो ग्रुप था उनको इनवाइट किया शांति निकेतन में आने के लिए। दिलीप दा पहले इंडियन आर्ट कॉलेज में थे 1-2 साल, फिर उसके बाद शांति निकेतन में उनको प्रोफेसरशिप मिल गया, तो वहाँ पे चला गया। तो हमको उनका घर भी खोल के देते थे पूरा, जब समर वैकेशन होता था चाबी हमारे हाथ में, हम उनका घर में रह सकते थे। तो और सलीलदा के वहाँ पे ग्राफिक्स करने जाते थे। सलीलदा इतना अच्छा से बोलते हैं ना, तो उसमें बहुत ही मुझे इंस्पिरेशन मिला। उस टाइम में बहुत ज़रूरत था, एक भूख था अंदर, तो इतना अच्छे से पूरा तो समझ नहीं पाता था, इतना इंटेलेक्ट और इतना। तो 1-2 स्टोरी वो मैं बता सकता हूँ उसमें से। जैसे एक खरगोश का स्टोरी बोला कि कैसे एक जो इंसान कैसे उसमें घुस सकता है, एक पेंटिंग में कैसे घुस सकता है। तो एक खरगोश रखा है, एक बच्चा कोई खरगोश देखे गया सलीलदा को, तो सलीलदा खरगोश को लेके रखा। फिर लग रहा कि अरे इसको मैं करूँ क्या और कैसे इसको खाना खिलाऊँ, कैसे इसको पालूँ। उनको कुछ आइडिया नहीं है ना खरगोश को कैसे, पहली बार कोई ऐसा एनिमल। तो फिर कैसे हो जाता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कैसे हो जाता है काम। फिर उनके घर में जो काम करने आती है ना, तो उनको पूछा अरे खाएगा क्या। तो उन्होंने बोला अरे उधर घास है, वो घास लेके आओ, तो वो खाएगा। तो वो घास लेने गया, तो फिर शायद गलत घास लेके आ गया, तो उनको खिलाया तो उनका वॉमिट होने लगा उस खरगोश को। फिर बोलते हैं अरे तो वॉमिट होने लगा, अभी क्या करूँ। तो और एक जन वो जो पेड़ काटने आता है वहाँ पे वो बोल रहे अरे उधर एक गवर्नमेंट का वो है, डॉक्टर है वहाँ पे, सारे जानवर, हाँ सारे जो एनिमल है उनका ट्रीटमेंट होता है। तो वो भी मिल गया, वहाँ पे ट्रीटमेंट करने गया। फिर ऐसे करके तुमको घुसना है, तुमको उसको प्यार करना है, तुमको एक कैनवास के सामने बैठना है, तो अपने आप ही कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। तो ऐसा करके मैं उसमें पूरा घुस गया। जैसे यहाँ पे इंदोदा बहुत कुछ बोला, तो रात को मैं 2 बजे उनको जाके नॉक किया कि इंदोदा तो क्या मैं रॉन्ग हूँ, इतना जो किया सब बेकार हो गया, मैं कैसे करूँ कुछ चीज़ें। तो इंदोदा बोला, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का शायद एक लाइन बोला कि जेखाने देखिबे छाई उड़ाइया देखो ताई, पाइलेও पाइते पारो विविध रतन। तो टीचर का काम है कि तुमको ना
थोड़ा सा इधर दिखाएगा, उधर दिखाएगा, ऐसा बहुत सारा अलग अलग रास्ता को ओपन कर देगा। तो वहाँ पे आप अपना चीज़ ढूंढो तो तुमको मिल सकता है। वहाँ पे रत्न गोल्ड जो तुमको चाहिए वो शायद मिल सकता है। तो टीचर का काम वही है कि इसमें देखो, उसमें देखो, इसमें देखो करके चारों तरफ का रास्ता, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कन्फ्यूजन बहुत अच्छा है, उसके वजह से हम आगे ऐसा जा पाते हैं। तो ऐसा सूरज सर भी था यहाँ पे, वासु सर, ये लोग भी बहुत ही अच्छा से, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पहले मैं जब पोस्टर, बैनर्स, ग्लॉसी मैगज़ीन ये सब देखता था और उसमें से ही इंस्पायर होकर काम करता था। लेकिन बाद में जब शादी हुआ, मेरा फैमिली बना, तो मैं पूरा इन्वॉल्व हो गया और उनका फ़ोटोग्राफ्स और ये सभी ज़्यादा देखने लगा, और तो वो सभी मेरा पेंटिंग में आने लगा। तो ये बहुत बड़ा जो इमेज जो चाहिए वो आंखों के सामने हमेशा दिखता है, तो वो एक बहुत बड़ा सामने रेडीमेड इमेज मिल गया। तो मुझे फ़ोटोग्राफी करने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप ही सब दिख रहा है। कनिका और माही सो रहा है, उनका फ्लोरल डिज़ाइन वो चादर में है, तो मैं उसमें ही कैनवस लेके शुरू हो जाता हूँ या छोटा छोटा ड्राइंग कर लेता हूँ। और तो ऐसा हेल्प। और कनिका बस वो कहीं पे मुझे डिस्टर्ब नहीं किया कभी। मैं काम कर रहा हूँ तो चलो ये आलू ख़त्म हो गया तो लेके आओ, ऐसा टाइप का कभी किया ही नहीं। ज़रूरत है तो वो अपने आप ही। इसीलिए मैं पहला क्या किया, उसको वो स्कूटर नहीं आता था, तो कभी साइकिल भी नहीं चलाया, तो मैं उसको पहले ही बोला, एक स्कूटर लेके आया, मैं बोला भाई तुमको सीखना है। नहीं, कुछ दिन के एक्सपीरियंस के बाद हुआ था उधर। 1 वीक अप एंड डाउन किया। मैं सुबह फैकल्टी जाती थी और इसको बोलती थी छोड़ के आओ, उसके बाद वापस आफ्टरनून में क्लासेस खत्म है, वापस उधर लेने आओ। विद इन अ वीक आई थिंक ही वाज डन विद इट, एंड जस्ट नेक्स्ट वीक ओनली, आई मीन सेम वीकेंड ओनली, ही सेड चल आई विल बाय यू अ काइनेटिक, एंड डेलिबरेटली ही गॉट मी दैट हेवी काइनेटिक जो मैं ड्रैग भी नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में ही ट्रेन्ड मी, एंड जस्ट द नेक्स्ट वीक ही केम, ही यूज्ड टू लाइक ड्राइव बिसाइड मी, drop me to the faculty, and धीरे धीरे he just made me तो बस इनमें चक्का लगा दिया तो अपने आप चलने लगा। ये मेरा बहुत बढ़िया, मेरा खाली टाइम मिल जाता है पूरा। तो कोई उनके साथ ऐसा जुड़ के रहना है, और हस्बैंड वाइफ का जो बीच में एकदम सपोर्ट, ये सब से हम थोड़ा इसको ओपन फ्री हो गया। वो उसका लाइफ जीते है, वो पढ़ाई करना चाहती है, PhD करना चाहती है, 6 साल लगा, तो वो उसके हिसाब से वो बिज़ी हो गया, मैं मेरे हिसाब से बिज़ी हूँ। हाँ, कभी ऐसा चाय का टेबल में ऐसा हम मिलते थे। तो ये एक बहुत बड़ा, ये जो एक खाली स्पेस मिलता है, तो ये खाली स्पेस इन्होंने दिया है। बिना सपोर्ट के फैमिली के तो कुछ नहीं हो सकता। बोलते बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमेन, बट आई वुड से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन आल्सो इज अ मैन। यस मैन वुमन ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, मतलब द अदर वन, आई मीन जो आपका पार्टनर है, उसके सपोर्ट के बिना और फैमिली के टोटल सपोर्ट के बिना तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक फैमिली, एक जो सिस्टम बनाया, सोशल सिस्टम सोसाइटी ने, तो ना मुझे लगता है ना कहीं पे ये जो हस्बैंड वाइफ का ये प्यार और रिश्ता, इससे ज़्यादा सहन करने का जो शक्ति होता है ना, कि तुम सहन करो, तुम्हारा वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो। और हाँ, तो इसमें कोई फिर लोचा नहीं होता, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आई थिंक आई लर्न टू एक्सेप्ट ओवर द इयर्स, जैसे से देखा समझी उसके बाद, बिकॉज आई वाज मैरिड सो यंग, आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग। जस्ट 22 आई गॉट मैरिड। No, you are also looking young still. Oh, thank you so much. But otherwise, like me. Otherwise, I think I have grown even in my own journey of married life, or of living with an artist. और बाकी आई थिंक आर्ट तो है ही है, हमें रास्ता तो दिखा ही रहा है, जीने का मकसद भी बता रहा है। तो ऐसे ही करके जर्नी चल रही है। और इसके आगे जो मेरे अपने गुरु है और मेरे मेंटर है प्रोफेसर संजय जैन, तो उनकी एक लाइन मुझे हमेशा वो रिमाइंड कराते हैं जब मैं किसी डिफ़िकल्टी में होती हूँ, चैलेंज में होती हूँ, तो ही विल ऑलवेज से दैट समवन सिटिंग समवेयर विल टेक केयर ऑफ़ यू। सो एक वो हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड रहा है, और वो हमें देखा भी है उधर। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स आए जब हमने बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समथिंग वर्क्स आउट, जस्ट एट द निक ऑफ टाइम समथिंग विल हैपन। सो गॉड इज़ देयर, नेचर इज़ देयर, विच
यू नो हेल्प्स अस टू लिव, आई मीन सर्वाइव कर पा रहे हैं, और आर्ट कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट भी कंटिन्यू रखे और ये जर्नी चलती रहे। और इसकी पेंटिंग की तरह, यू नो, द वे इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, लाइफ वुड आल्सो गो ऑन। बस यही एक्सपीरियंस जो है वही है, फिर हम कहाँ कौन कहाँ। लाइफ टीचर है, उसके एक्सपीरियंस के साथ ही हम लोग जी रहे हैं और सीख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं और ट्राई करते हैं अपना बेस्ट दे पाए। फेल नहीं होगा तो नया बनेगा नहीं कुछ। फेल और पास ये सब रहता है साथ में, सभी अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस ही है। फेल होना भी ज़रूरत है, इसीलिए पेंटिंग में मैं कभी कभार फेल होना चाहता हूँ। हमेशा पास होगा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लड्डू जैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उसमें से कुछ नया आइडिया। मैं एक बार देखा, वो धूमल सर को मैं पेंटिंग दिखाने लेके गया, तो जो पेंटिंग में मैं फेल हुआ ना, फेल होने के बाद प्रॉब्लम हो गया कि अरे इसको बनाऊँ कैसे, और फिर उसका जो फोटोग्राफ्स था ना वो भी गुम हो गया। जो फोटोग्राफ से मैं रेफरेंस लेता हूँ वो भी गुम हो गया, तो करूँ कैसे। तो वहाँ पे मैं अपने हिसाब से किया और फिर लगा कि हाँ अभी ठीक है। तो वो पेंटिंग को तुरंत उन्होंने बोला अरे दिस इज़ गुड पेंटिंग। तो वो पेंटिंग देखने लगा ऐसा 10-15 मिनट, अरे रुको उसको देखना है, जैसे सिगरेट पीने लगा और देखने लगा उनको पेंटिंग को। तो ये फेल होने के वजह से वो पेंटिंग अच्छा बना इतना। तो फेल भी एक तरह का, इट्स अ टीचर इन इटसेल्फ। फेल फेलियर होना भी बहुत सिखाता है। और बहुत सारी मेरा अपना आई मीन पर्सनल एक्सपीरियंस था, जब मुझे चार्ल्स वॉलेस ये नेहरू फेलोशिप मिला था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मैं नहीं क्वालिफाई किया था, सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो सेकेंड टाइम डेफिनेटली आई मीन एक डिसहार्टेड तो थी कि होगा कि नहीं होगा, बट आई स्टिल गिव इट अ ट्राई। पर वो फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मेरे इंटरव्यू में जो मुझे पता चला कि मेरी वीकनेस क्या है, वो विद इन एन ईयर I just focused on you know how that weakness should become my strength by the next time I apply. And it happened. It so happened when I got the fellowship in the next year. तो वही वीकनेस, वो जो चैलेंजेस थे वो मेरी स्ट्रेंथ बने, और मैंने देखा कि इंटरव्यू आई मीन एकदम फ्लॉलेस सीमलेस इंटरव्यू हुआ एंड आई कुड क्रैक द फेलोशिप। तो वो फेलियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तुम हमेशा बोलते हो कि इसमें डरना नहीं, टूटना नहीं, और इससे आगे सीखो और इससे आगे बढ़ो। तो वो स्ट्रेंथ तो आई है, देख के आई, और अब डर नहीं लगता। पता है कि इस चैलेंज के बाद कुछ अच्छा होगा, और वो कहाँ, उससे क्या लर्निंग हमको लेनी है, क्या लर्निंग लेसन है। सो दैट्स समथिंग विच एवरीबडी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस।